Lesson number 4, work around us. In these lessons, we will learn various occupations and professions. Students, also we have learned about different services provides who help us in our daily lives. इस lessons के अंदर हम different services जो हमें provides करते हैं, day to day life हमारी easy बनाते हैं, उन सारे community helpers के बारे में study करेंगे. People do various types of job. People कई सारी different jobs करते हैं. Some people make things while other providing us with the useful services. ऐसे peoples जो हमें things provide करते हैं such as grocers, greengrocers, milkmen, etc. And some are providers to useful services such as teacher, doctor, etc. Members of a family help each other while sharing work at home. फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वर्क को शेयर करते हैं. वी कैन नॉट डू मैनी जॉब ऑन आवर ओन, सो वी डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर दिस जॉब्स. हम कई सारी ऐसी चीजें सर्विसेज है जो हम खुद से नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंड्स रहते हैं, तो हमें दूसरों की सर्विसेज चाहिए होती है. तो वो कौन प्रोवाइड करते हैं? डिफरेंट कम्युनिटी हेल्पर्स. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द पिक्चर, look at the picture showing people at work. Some people provide us certain services. There are many kinds of work that we cannot do on our own, and we require help from other people who can do that work for us. हमें रिक्वायरमेंट होती है दूसरे पीपल्स की जो हमारी सर्विसेज को फुलफिल कर सके. These people give us services. ये सारे पीपल्स हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट पिक्चर इज अ कोबलर. कोबलर मेड अस शूज. सेकेंड वन इज टीचर. हु टीचेस इन अ स्कूल? द टीचर टीचर्स इन अ स्कूल. एज यू कैन सी द थर्ड पिक्चर, दिस इज मिल्कमैन. मिल्कमैन प्रोवाइड्स अस मिल्क. फोर्थ वन इज कारपेंटर. हु मेक फर्नीचर फॉर अस? द कारपेंटर मेक फर्नीचर फॉर अस. And fifth picture you can see, this is washerman. Washerman wash our clothes. Next picture, barber. Who cuts our hair? The barber cuts our hair. Next picture is nurse. Nurse provides services to us. जब हम बीमार होते हैं तो नर्स हमारी देखभाल करते हैं. And the last picture is engineer. Engineer कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, बिल्डिंग्स के प्लान्स प्रिपेयर करते हैं. तो ये सारे जो कम्युनिटी हेल्पर्स है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे ही हम इस लेसन में डिफरेंट कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. In our daily lives, we come across many people at work such as milkman, newspaper, deliveryman, shopkeeper, cobbler, etc. They earn money by working. ये सारे लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड्स करके मनी अर्न करते हैं. अ रेगुलर एक्टिविटी और वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय. ये उसकी व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन से. ये सारे लोग से जो डेली लाइफ्स को हमारी इजी बनाते हैं. दे प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज such as milkman, newspaper, deliveryman, shopkeeper, cobbler. They providing services to earn money, and this activity or works done to earn money, and these activities they have to do regularly. तो इसको क्या बोलेंगे? occupations. ये इनका व्यवसाय होता है. सर्विसेज प्रोवाइड करके वो मनी अर्न करते हैं. स्टूडेंट्स, here one class activity is given. Look at the pictures on the page number 31 and write the occupations of the peoples. Earlier we have seen the different community helpers and their services. So in this activity you have to do at your home. In the first picture we will see cobbler, teacher, milkman, carpenter, washerman, barber, nurse and engineer. These words, the spellings you have to write here. The occupations name is you have to write in this blanks. This activity you have to do at your home. Now students, each kind of occupations require its own skills or training. There are many jobs which we can't do on our own as we do not have the skill required. ऐसी कई सारी जॉब्स और ऑक्यूपेशंस है
इट्स ऑन स्किल और ट्रेनिंग, जो अपनी स्किल और ट्रेनिंग से उसको ऑक्यूपेशंस बनाते पीपल्स और उससे वो मनी भी अर्न करते हैं. वी डिपेंड्स ऑन अदर्स टू गेट दिस जॉब डन. हम दूसरों पे डिपेंड्स होते हैं टू रिक्वायर एंड फुलफिल अवर requirement, and we require different kinds of services. The occupation that requires special training and formal qualifications refers to as a professions. ऐसे occupations जिसमें special training की requirement होती है, formal qualifications चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जिस occupations में required है उसको profession बोलेंगे. Let's talk about some occupations. चलो देखते हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में. ईच काइंड ऑफ ऑक्यूपेशंस रिक्वायर इट्स ऑन स्किल एंड ट्रेनिंग. सभी ऑक्यूपेशंस में डिफरेंट ट्रेनिंग एंड स्किल की रिक्वायरमेंट होती है. स्पेशल क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए और क्वालिफिकेशंस भी होना चाहिए, तब जाके आप एक प्रोफेशनल बनोगे आपके फील्ड में. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑक्यूपेशंस. In the first picture, this is Dharmesh. Dharmesh is a tailor. He uses sewing machines to stitch his clothes. He also embroiders beautiful designs on dresses and saris using a needles and thread. He learned this skill from his father. धर्मेश क्या है? एक टेलर है और वो क्लोथ्स को स्टिच करता है. Also they have to design a beautiful embroideries to dresses and saris. saris के अंदर एम्ब्रॉयडरीज लगाने का काम भी करता है और ये स्किल उसने अपने फादर्स के पास से सीखी है. सो धर्मेश इज अ टेलर हु स्टिचेस अवर क्लोथ्स. द टेलर टीचेस अवर क्लोथ्स. नेक्स्ट पिक्चर, एज यू कैन सी, रिहाना इज अ ट्रैफिक पुलिस वुमेन. रिहाना कौन है? ट्रैफिक पुलिस वुमेन है. ऑल डे शी स्टैंड ऑन बिजी रोड, intersections and direction traffics. At times, she blows a whistles to sign vehicle to stop when people break traffic rules. She collect fines from them. रिहाना एक ट्रैफिक पुलिस वुमेन है और वो बिजी रोड पे वो सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं और रूल्स फॉलो करने की गाइडेंस देते हैं. When people break the rules, she collect the fines. अगर पीपल्स ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं तो she collect the fines. उसके पास से वो फाइन कलेक्ट करती है. She also checks whether driver has all the necessary documents required to a driver vehicle. Also, रिहाना चेक करती है कि ड्राइवर के पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो ड्राइविंग के लिए जरूरी है. It is illegal to drive below 18 years of age and without a driving license. ये गैर कानूनी है, इलीगल है. 18 ईयर्स से बिलो के यंगस्टर अगर व्हीकल चलाए तो ये इलीगल है और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के बिना भी आपको फाइन हो सकता है. तो ये सारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी कौन करता है? रिहाना. और रिहाना कौन है? रिहाना इज अ ट्रैफिक पुलिस वुमेन एंड दे डू देयर वर्क. This is Ramesh. Ramesh is a train engine driver. He lives in Delhi and operates an express train between Delhi to Mumbai. His job is to carry the train safely to its destinations on time. रमेश एक ट्रेन इंजन ड्राइवर है और वो दिल्ली में रहते हैं और वो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन चलाते हैं. उसकी ड्यूटी है अपनी ट्रेन को सेफली उसके डेस्टिनेशंस पे पहुंचाने का, ऑन टाइम पे उसका अपनी ट्रेन को पहुंचाना, ये उसकी ड्यूटीज है. He controls the accelerations and brakes of the train so that it arrives and leaves stations at the correct time. His jobs require disciplines, hard work, alertness and dedications. ये जॉब करने में ट्रेन इंजन ड्राइवर्स की बहुत सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए. कौन कौन सी क्वालिटीज? His jobs require many qualities such as disciplines आपके अंदर होनी चाहिए. Then after hard works, अलर्टनेस एंड डेडिकेशंस. पूरे डेडिकेशंस के साथ आपको आपकी ड्यूटी करनी होती है इस जॉब में. रमेश बिगेन हिज करियर बाय क्वालिफाइंग इन द एग्जाम एंड देन वर्क एज एन असिस्टेंट ड्राइवर ऑन अ डीजल लोकोमोटिव. वो क्वालिफाइड था इस जॉब के लिए और उसके अलावा उसने वर्क किया हुआ है एज अ असिस्टेंट ड्राइवर.
learned about train parts and सिग्नलिंग सिस्टम्स. उसने ट्रेन पार्ट्स के बारे में स्टडी की है, लर्न किया है, और उसके अलावा सिग्नल्स के बारे में भी, सिग्नल सिस्टम्स के बारे में भी स्टडी किया है. आफ्टर extensive training and year of the practice, he became a driver of an express train. ये सारी ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशंस के बाद वो क्या बनता है? इस सारी प्रैक्टिस के बाद, ट्रेनिंग सेक्शंस के बाद वो he became a driver of an express train. Afterwards, Ramesh has become a driver of express train. तो ट्रेन इंजन ड्राइवर बनने के लिए ये सारी क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होनी चाहिए, वेल ट्रेन होने चाहिए. फिर इस जॉब के लिए आपको और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है? डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, अलर्टनेस एंड डेडिकेशंस के साथ अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए. समटाइम्स ही फेस डिफिकल्टी सच एज breakdown of signals or an emergency aboard the train. On such occasions, he uses presence of mind to ensure the safety of all passengers. कई सारी डिफिकल्टी भी रमेश को फेस करनी पड़ती है. कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती है? ट्रेन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाना, सिग्नल्स, such difficulties such as breakdown of signals or an emergency aboard the train. On this such situations, he use his presence of mind. ऐसी situations में रमेश अपने presence of mind का use करके सभी पैसेंजर की सेफ्टी के बारे में सोचता है. So this is the duty of Ramesh. Ramesh is a well-trained engine driver. Ravi is a weaver. As you can see the picture, this is weaver. वणकर. रवि क्या एक वणकर है. He lives in Muktapur, a town in Andhra Pradesh. He and his family weaves a special clothes called a Panchampali. रवि और उसकी फैमिली आंध्र प्रदेश के मुक्तापुर में रहते हैं और रवि और उसकी फैमिली क्या बनाते हैं? स्पेशल क्लोथ्स बनाते हैं, स्पेशल साड़ीज बनाते हैं जिसका नाम है पंचमपली. They weaves clothes on a loom. It is called a hand loom as he operates it manually. It is a traditional carried on the family for many generations. ये उसकी ट्रेडिशनल व्यवसाय है. वो बहुत जनरेशन से ये पंचमपली साड़ीज बनाने का वर्क कर रहे हैं. Most of the family in Muktapur are engaged in making पंचमपली साड़ीज. मुक्तापुर के अंदर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इस व्यवसाय से, पंचमपली साड़ीज बनाने के व्यवसाय से जुड़ी हुई है. Looms, spandrels, bobbins and threads are used to weave the silk and cotton sarees. The family members has different responsibilities. For example, Ravi's wife dyes the threads, his father rolls it into bundles, and Ravi's put into the looms and weaves. Ravi's children too helps dyeing the threads or rolling the clothes. Looms, spandrels and bobbins and threads are used to weave the silk and cotton sarees. बनाने में ये सारी आइटम्स का यूज होता है. रवि's families has different responsibilities. फॉर एग्जाम्पल रवि की वाइफ क्या करती है? धागे बुनने में हेल्प करती है. रवि के फादर रोल्स करते हैं, क्लोथ्स के बंडल्स बनाते हैं. रवि पुट्स इनटू द लूम्स एंड वेव्स. रवि वो सारे क्लोथ्स को, धागे को वनता है, वेव्स करता है. इट्स एंड रवि's चिल्ड्रंस टू हेल्प टू डाइंग द थ्रेड्स और रोलिंग द क्लोथ्स. क्लोथ्स को रोल करने में, थ्रेड्स को रोल करने में रवि के चिल्ड्रंस भी उसको हेल्प करते हैं. Although they works hard, Ravi and his family do not get much money from the sales of the sarees. इतने हार्ड वर्क के बावजूद भी रवि की फैमिली को ये साड़ीज, जो पंचमपली साड़ीज बनाते हैं इतने हार्ड वर्क से, उसमें उसको इनफ मनी नहीं मिलता. दिस इज बिकॉज द बिग शॉपकीपर्स डू नॉट गिव देम इनफ फ्रॉम द सेल्स. इसकी वजह है जो बिग शॉपकीपर्स है उसको इनफ मनी नहीं देते. हेंस रवि's चिल्ड्रंस डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द फैमिली ट्रेडिशन व्हेन दे ग्रो अप. दैट्स वाई रवि के चिल्ड्रन से वो इस जनरेशन्स को, इस ट्रेडिशंस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि उसको इस प्रोफेशन में ये जो साड़ी का उसका वर्क है
उसमें उसको इनफ मनी नहीं मिलता. दैट्स वाई रवि's चिल्ड्रंस डू नॉट want to continue the family traditions when they grow up. This is Sumit. Sumit is a doctor. He treats the sick people. He find out the symptoms and after diagnosing the disease, advise medicine to them. सुमित एक डॉक्टर है और वो एक सिक पीपल बीमार लोगों को ठीक करते हैं. उसके सिम्टम्स और बीमारी को देख के वो मेडिसिन उसको प्रोवाइड करते हैं. ही स्टडी medicines for 5 years after passing 12th and his training also include a year as an intern at the hospital attached to his medical college. After passing the 12th class, Sumit study in 5 years for medical line and also they have to get a training in his medical college. तब जाके ये अच्छे एक वेल डॉक्टर बने. 12 पास करने के बाद उसने 5 years मेडिकल लाइन में स्टडी किया और उसके बाद इंटर्नशिप भी उसने अपने मेडिकल कॉलेज में की. तब जाके एक वेल गुड डॉक्टर्स वो बने, अपने प्रोफेशंस में आए वो. शीला इज अ नर्स हु हेल्प्स सुमित एट द हॉस्पिटल. शी हैज अ डिग्री इन नर्सिंग. एज यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज शीला. वो क्या है, एक नर्स है. वो सुमित को हेल्प करती है हॉस्पिटल में और उसकी डिग्री क्या है, नर्सिंग की डिग्री से. शी हैज टू स्टे अवेक ऑल नाइट when she is on duty as she is responsible for the seeking the health of the patients and periodically and giving medicines to prescribed by the doctors. नर्सिंग का काम क्या है, शीला कौन सा वर्क करती है और उसकी ऑन ड्यूटी पे वो पेशेंट्स का ख्याल रखती है और जो प्रिडिक्शंस डॉक्टर ने दिए हैं मेडिसिन्स पेशेंट्स को देनी है ऑन टाइम पे, वो सारा वर्क शीला करती है, नर्स करते हैं. दिस इज पामेला. पामेला इज अ टेलीविजन जर्नलिस्ट. शी वर्क्स फॉर अ न्यूज चैनल. शी ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेस टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंट इवेंट. पामेला एक टेलीविजन जर्नलिस्ट है और वो एक न्यूज चैनल में वर्क करती है और वो डिफरेंट प्लेस पे ट्रैवलिंग करती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. शी देन प्रेजेंट it on televisions. Pamela reads a lot as her jobs require awareness about what is happening in the country and around the world. Generally, जर्नलिस्ट की क्या ड्यूटी से क्या जॉब है, कंट्रीज के अंदर क्या होता है रिसेंटली और अराउंड द वर्ल्ड के अंदर क्या रिसेंटली न्यूज है, वो सारे न्यूज और इंफॉर्मेशन जर्नलिस्ट कलेक्ट करते हैं और अपने टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल पे वो प्रेजेंट करते हैं. At times, she has to stay up all nights while reporting a important event. एक बार वो पूरी नाइट्स उसने स्टे किया एक रिपोर्टिंग करने के लिए, एक इवेंट को रिपोर्टिंग करने के लिए. At other times, she has to wait for hours for an interview with a politicians, actors or government official. उसके अलावा उसने एक बार पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और गवर्नर ऑफिसर्स का इंटरव्यू लेने के लिए उसने घंटों भर उसने इंतजार किया और ये सब जर्नलिस्ट फेस करते हैं अपनी ड्यूटीज के दौरान. बट शी डज नॉट माइंड दिस डिफिकल्टी एज शी लव्स हर जॉब. बट ये सारी डिफिकल्टीज वो उसको माइंड नहीं करती है, उसको अपनी ड्यूटीज, अपना जॉब बहुत पसंद है. सो दिस इज द journalist job. Pamela is a television journalist. This is John. John is a disc jockey. He play music to an audience at an event. John एक disc jockey है और वो एक म्यूजिक प्लेयर है जो स्पेशल इवेंट पे वो अपने म्यूजिक प्ले करते हैं. These events can be wedding, birthday parties, festivals, get-togethers and special nights at club. John listened to all types of music to include new song on his playlist. He also finds out what types of music his audience is likely to enjoy. और उसके अलावा उसको पता होता है कि उसकी ऑडियंस को कौन से टाइप्स के म्यूजिक सुनने में अच्छे लगते हैं, उसको पसंद है. He play that types of music on his playlist. So this is about a disc jockey.
Students, here one think aloud is given. Which profession do you find exciting and why? Think aloud. The next topic is women at work. In earlier time, women were not allowed to work outside the home and were expected to only take care of the house and children. पहले के टाइम पे वुमेन्स को बाहर वर्क करना अलाउड नहीं था और उसके पास से एक ही एक्सपेक्टेशंस होती है कि उसकी ड्यूटीज क्या है, अपने घर को संभालना और बच्चों की देखरेख करना. ऑल्सो सम जॉब्स वेयर रिगार्ड्स अ बीइंग टू टफ फॉर वुमेन. और कई सारी जॉब्स ऐसी है, ऐसे माना जाता था कि कई सारी जॉब ऐसी है जो वुमेन के लिए टफ है, वो नहीं कर सकते. This has changed. Today women makes up all kinds of jobs. Many women have joined the armed forces and there were women engineers and pilots. But वो आज के टाइम पे ये सब चेंज हो गया. आज women take up all kinds of jobs. आज women सभी प्रकार की जॉब्स करती है. Women have joined the armed force. वो आर्मी में भी, आर्म फोर्स में भी ज्वाइंट्स है. वुमेन्स देखने मिलते हैं. उसके अलावा वुमेन्स इंजीनियर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, सिविल सर्विसेज में भी वुमेन्स अपना रोल अदा करती है. सभी फील्ड में वुमेन अभी के टाइम पे आगे है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वन एक्टिविटी इज गिवन. आइडेंटिफाई दिस वुमेन अचीवर्स एंड नेम देयर प्रोफेशन. आई विल टेल यू दिस वुमेन्स नेम. यू हैव टू find their professions. Okay, which profession they have achieved success. You have to find this one. As you can see, the first picture is, this is Kiran Bedi, this is Kalpana Chawla, and this is Shiva Narasimha. This is 3 ladies. These ladies achieve lots of success in his life, in his career. So students, I will give you a activity. You have to find their professions and achieve in which profession, which field they achieve a success. You have to find their profession. Okay, here one workstation is given. Complete the following table by making man, woman and both. Here some nature of work is given. You have to find out which works done by man, woman and both. You have to do these works at your home. Next one, all jobs are important. This is Sohan's mother. Sohan's mother is a homemaker. She wakes up early in the morning. She also to prepare lunch for Sohan's and his sisters and his father. She cleans the house, cook food for family members and help the children with their homework and take care of all their needs. She works all day and although she gets very tired, she always wears a smile on her face. ये सोहन की मदर है और वो एक हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है. शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड शी preparing lunch for all the family members and she is clean the house and cook food for family members. Also she helps their children to doing their homework and take care of all the family members and their needs. ये उसका हर रोज का वर्क है. इससे वो कभी कभी थक भी जाती है. She gets very tired. She always wear a smile on her face. इतना सारा वर्क करने के बावजूद भी उसके फेस पे स्माइल रहती है. One day when she fell sick, everyone found its difficulty to carry out their activities on time. एक दिन वो बीमार हो गई तो सभी फैमिली मेंबर्स को डिफिकल्टी फेस हुई. अपने टाइम पे सारा एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि सोहन्स की मदर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. सभी फैमिली मेंबर्स को अपने अपने ड्यूटीज टाइम पे कंप्लीट करने में वो बहुत हेल्प करती थी. दैट्स वाई ऑल द फैमिली मेंबर्स फेस अ डिफिकल्टी. सोहन्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क दैट हिज मदर डिड एट होम. सोहन्स को रियलाइज हुआ कि उसकी मम्मी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस वर्क्स रहता है उसकी लाइफ में और वो बीमार होती है तो कितनी सारी डिफिकल्टीज उसको फेस होते हैं. ही ऑल्सो रियलाइज्ड व्हाई अ हाउस वाइफ इज बेटर नोन एज होम मेकर. सोहन को उसके अलावा ये भी रियलाइज होता है कि उसका वर्क्स इतना इम्पोर्टेंस क्यों है. व्हाई अ हाउस वाइफ इज बेटर नोन एज होम मेकर. So this is all about
हाउसवाइफ्स वर्क, सोहन्स मदर इज अ होम मेकर्स। हमारे घर पे भी हमारे मम्मीज कितने सारे वर्क्स करती है हमारे लिए, तब जाके हम ऑन टाइम पे स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं। सो सभी प्रकार की जॉब्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। ऑल द जॉब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए एंड रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। एवरी जॉब इज इक्वली इम्पोर्टेंट। अ क्लीनर जॉब इज एन इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन हु वर्क फॉर अस एंड नॉट रिगार्ड एनी जॉब एज लॉली। सभी जॉब इक्वली इम्पोर्टेंस होती है। अ क्लीनर्स जॉब इज एन इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर जॉब। क्लीनर्स की जॉब भी इतनी इम्पोर्टेंस होती है जितनी पुलिस ऑफिसर्स की होती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन हु वर्क्स फॉर अस। सबके प्रति हमारी इक्वली रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एंड नॉट रिगार्ड एनी जॉब एज लॉली। और कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन हु वर्क फॉर अस। नाउ स्टूडेंट्स, हियर two new words is given. First one is symptoms. Symptoms किसको बोलेंगे? A feature which indicates a condition of a disease. कोई भी बीमारी होती है तो उसकी कंडीशन क्या है, उसके कैसे हम इंडिकेट्स करेंगे कि उसको कौन सी बीमारी है? उसके कुछ फीचर्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज सिम्टम्स। डायग्नोज मीन्स आइडेंटिफाई अ मेडिकल कंडीशन। डायग्नोज किसको बोलेंगे? मेडिकल कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। डायग्नोज, ये दोनों वर्ड्स रिलेटेड है डॉक्टरी लाइन से, मेडिकल लाइन से, सिम्टम्स एंड डायग्नोज। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट व्हाट वी विल लर्न इन दिस लेसन। वी विल लर्न people do different job as earn money and they providing different kinds of various kinds of services to us. Some peoples provides things and some are provides different services to us. Each occupations require its own skill. सभी occupations के अंदर सबकी अलग अलग skill require होती है, abilities होती है, तब जाके वो अपने फील्ड में माहिर बनते हैं। Both men and women takes up all kinds of jobs this day. Nowadays, women and men both can do equally and everyone's job together. अभी के टाइम पे वुमेन एंड मैन सभी टाइप्स की जॉब्स कर सकते हैं। विमेन भी मेंस के बराबर इक्वली सब जॉब्स कर सकती है। We must share works at home so that no members of the family gets overburdened. हमें घर पे होम वर्क इक्वली सबको करना चाहिए ताकि फैमिली मेंबर्स का वर्क बढ़ जाए। We must share work at home. We must respect everyone who work for us and not regard any work of a lowly. सबके प्रति हमारी इक्वली रिस्पेक्ट्स होनी चाहिए। We give respects to all service providers and all community helpers and workers. We must respect everyone who work for us. So children, that's it. We will meet in the next class. Thank you and have a nice day.